Students, today we are going to study SQL functions. ठीक है, हम लोग SQL स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, SQL functions. Basically, अगर हम SQL functions की बात करें, talk about SQL functions, then you can say it is a set of SQL commands. ठीक है, ये एक सेट होता है SQL कमांड्स का, SQL स्टेटमेंट्स का कह सकते हो. ठीक है, स्टेटमेंट्स. ओके, दैट एक्सेप्ट ओनली इनपुट पैरामीटर. ठीक है, हम बेसिक नहीं पढ़ा रहे हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग बेसिक, आई एम डायरेक्टली केम ऑन द कोडिंग पार्ट of SQL. Okay, so if we talk about what is जितने भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली मैंने बताया कि इट्स अ सेट ऑफ SQL स्टेटमेंट्स that complete a only input. ठीक है, like suppose that if you will explain, that is action. When you will input, then it will take some action and give the result, or you can say that return the result. ठीक है, अब basically if I will talk about the types of function, ठीक है, what is type of function? तो type of functions basically two types. One is scalar function, ठीक है, and second one is aggregate, that I have already asked in your examination. ठीक है, aggregate functions, one is scalar function and second one is aggregate function. Okay, now what is the meaning of aggregate function and scalar function? Tell me. Okay, let's see. A scalar function, the function can applied over columns. ठीक है, वो फंक्शंस जो कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हैं, विच अप्लाई ऑन और ओवर, यू कैन से कॉलम्स. ठीक है, हम अगर कॉलम्स के ऊपर फंक्शंस अप्लाई करते हैं, वो हमारे स्केलर फंक्शन कहलाते हैं. ठीक है, ऑफ अ टेबल. ठीक है, ऑफ अ टेबल टू परफॉर्म अ रिलेवेंट ऑपरेशन on value of each student, each record, each student, any table which you will apply in that. And now suppose that एक example अगर हम scalar function का लेते हैं, तो you can say that suppose that you will write select left, select left side letter of each student. हेलो मैम, क्लास ले रहा हूँ. आफ्टर प्लीज टॉक आफ्टर हाफ एन आवर. ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ. ईच सेलेक्ट लेफ्ट साइड ऑफ अ लेटर. सपोज दैट, तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, हमें एक कमांड लिखेंगे, सेलेक्ट लेफ्ट. ठीक है, सपोज कोई नेम है, ठीक है, नेम कॉमा 4. ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसे ऐसे हम लोग लिखते थे ना, फ्रॉम स्टूडेंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि नेम के जो फर्स्ट लेटर होंगे, ठीक है, 4 लेफ्ट लेटर्स आपको डिस्प्ले होंगे व्हेन यू विल एग्जीक्यूट द कमांड. ठीक है, तो हाउ यू विल डू दिस, दैट्स विल टेल यू लेटर. ओके, now what about aggregate function? Aggregate function like sum, average, date, and on any data when you will apply, then you will use. ठीक है, जितने भी हम लोग यूज करते हैं फंक्शंस, एवरेज के लिए, काउंट के लिए, मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए. if you will use maximum value, minimum value, anything you will find related to numbers. Okay, or you can say that aggregate data. ठीक है, मीन्स डेटा को हमें अगर
calculate करना है in somehow, then we'll use aggregate function. And when you will work on columns, whole columns, okay, then means you can say that string or any column, in that case we will use a scalar function. Okay, so sometime it will ask the examiner that what is the difference between the scalar and function. You can simple say that this function can be applied over columns of table, perform relevant operation, and aggregate functions you will use for some aggregating a data like mathematical data, you can say, okay, to prepare a report. Okay, clear till here? Clear? Tell me, students. Okay, now see some mathematical functions which I am going to tell. सबसे पहले हम लोग जो सिंपल फंक्शंस हैं वो एक बार ऑलरेडी वी हैव स्टडीड एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड आल्सो इन द प्रोग्राम. So first of all, function, mathematical function perform operation over numeric value. ठीक है, अब if I will talk about mathematical function, ठीक है, अगर हम mathematical function के बारे में बात करेंगे function, तो क्या होगा कि to perform operations over numeric value. ठीक है, अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करना है तो वी विल यूज मैथमेटिकल फंक्शन. ठीक है, एंड नाउ पावर. ठीक है, सबसे पहले हम लोग फंक्शन यूज करेंगे पावर. फॉर पावर क्या करता है ये? इट रिटर्न्स दैट आई हैव ऑलरेडी यू हैव लर्नड अबाउट इट. इट रिटर्न्स द वैल्यू इन नंबर्स. ठीक है, नंबर्स में वैल्यू रेज्ड पावर जो होती है, नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ अनदर नंबर. ठीक है, अगर कोई दूसरा नंबर है तो उसको हमें पावर रेज करके उसको लेते हैं. जैसे एग्जांपल हियर पावर m comma n. Okay, so it is a small, you can say write it is small. Power m means m is the base. ठीक है, m is the number which is the base of the exponentation, और n is the number which is the exponent. ठीक है, ये हमारा क्या है? exponentation है. ठीक है, it is the base, you can say it is the base of a number and it is the exponent. ठीक है, so it when you will write like how you will write this command, select, पेपर में भी ऐसे ही आएगा, select power 3,2. it means the output of the value is 3 square means it is the value output of this number is 9. okay, 3 to the power square. ठीक है, तो इस तरीके से कमांड लेके आएगी, आपको आउटपुट लिखना होगा. ठीक है, same as if you will give the number in decimal, then also give accordingly. Suppose that power 2.37 comma 3.45, then also you will give the power, it will give the output in numbers. Okay, so clear? This is the use of a first function. Okay, now see next function I am going to tell you, round. Okay, round is the function that will return the number rounded value. ठीक है, इसका if it will return the value round number. ठीक है, returns a number rounded to a certain number of decimal. ठीक है, like इसका if I will talk about the syntax is round any column name comma decimal.
ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा कॉलम नेम रिक्वायर द फील्ड टू राउंड, अगर हमें एक पर्टिकुलर एक टेबल को सपोज ये हमारा कॉलम है, ठीक है, इसमें एक कॉलम, इस कॉलम में एक नंबर वैल्यूज हैं, डिफरेंट नंबर वैल्यूज हैं, तो हमें इन सभी नंबर्स को राउंड करना है, ठीक है। इन ऑल द नंबर्स दिस आई हैव टू राउंड, लाइक सपोज इट इज 2.35, it is 6.75, 36.75, it is 1.4.13323, so it differentiating the values. Suppose that यहाँ पे हमें यहाँ पे 2 digit after decimal 2 digits are there, here after decimal 2 digits are there, here after decimal 3 digits, हमें कुछ equivalent सा चाहिए, ठीक है। You can also round the value of a single number, like then for that you will write simple round and number and then comma decimal place, ठीक है। If you will not decimal place, it will complete and give the output as a, it will simple zero position, that means it will round off whole value. Like suppose that if you will write like this round and I will write 2.35 directly, okay, and I have not given a decimal places, then what you will do, the value will be like 2 only, okay. Round 2.35, that means the rounded value will be 2 directly. Suppose that if the rounded value will be 2.487, then the rounded value will be 3. Suppose that if I round the value 2.365 comma 2, in this case the rounded value will be 2.37, okay, because it is a 2 decimal place. Suppose that if I will write a 1 over here, then the output will be 2.3, okay, yeah, clear. So in this case, suppose that if you write like in code, in SQL code, then what you will write, like here select round 45.352 comma 2, suppose that, then the output of this is 45.35. this is the output of the program, okay. Same as now एक और चीज होती है, sometime it will give the minus negative value, okay, though negative minus 1 -2 at the place of decimal place, तो ठीक है। For that what you will, that is very important. Suppose that if I will write like here, right, suppose that if I will write like in question, in exam, in question paper, select round 454.324 comma -1, okay. Now here this is the value. Suppose that here 454.1. अब इस चीज को बहुत अच्छे से पहले समझो, 454.352, suppose that this is the value, okay. Then what, this is zero place, -1 and -2 place from here, okay, and it is 1 2 3, ठीक है। ये तो होता है, अगर आप इसको लिखेंगे तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, बट अगर हम इस डेसिमल की बात की, डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन में 1000 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में 1000 आ जाएगा, दैट यू नो, आई थिंक सो, ठीक है। तो इसमें हमें अगर -1 की बात करनी है तो इट विल राउंड द नियरेस्ट नंबर, डेसिमल प्लेस पोजीशन वैल्यूज राउंडेड टू द नेक्स्ट इंटीजर इफ द नेक्स्ट राइट साइड नंबर इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। सपोज अब यहाँ पे वैल्यू जो है, अगर यहाँ पे हमने कहा -1 पे करना है, ठीक है, -1 के अकॉर्डिंग, अब हम -1 क्या है हमारा, ये है -1, दिस इज द -1, okay, this position is -1, then what, the output will be 450, okay, 450, clear. Suppose that the value will be -2, ठीक है। अगर अब यहाँ पे बस दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि -1 एंड -2, -3 होगा तो वैल्यू 10,000 में जाएगी, मतलब यहाँ पे अगर एक और नंबर होगा 5454, इस तरीके से होगा। देन अब यहाँ पे अगर हमने -2 लगा दिया, ठीक है, -2 लगा दिया, देन व्हाट, 10 ये वैल्यू, अब जैसे -1 लगाया तो दैट मीन्स द वैल्यू विल बी गोज टू नियरेस्ट टेंस नियरेस्ट प्लेस, एंड -2 लगा दिया देन द वैल्यू विल बी गोज टू नियरेस्ट 100th प्लेस, ठीक है, 100th प्लेस पे जाएगा।
ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी, अगर हम वन की बात करें तो आउटपुट विल बी 450। अब आई विल टॉक अबाउट -2, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दैट, 500। ओके 500, ठीक है। तो इसका जो फंडा है उसको समझ लो, सिंपल चीज। ये एक क्वेश्चन इसमें इस टाइप का राउंड करने में, ऐसा डायरेक्टली राउंड करने को नहीं आता, ऐसे ही कुछ आता है, ठीक है। तो राउंड करने का जो तरीका है वो ऐसा ही रहेगा कि आपको किस तरीके से उसको समझना है। तो आप इसको एक रूल बना दीजिए, लिख देता हूँ, डेसिमल प्लेस पोजीशन वैल्यू इज rounded to next integer if its next right side number is greater than 5 और इक्वल टू 5, ठीक है। और डिफॉल्ट डेसिमल, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको यही चीज़ें जो ये 2 फंडे काम करेंगे आपके एग्जाम में भी। डिफॉल्ट डेसिमल प्लेस इज 0 पोजीशन, ठीक है। इफ सपोज दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अगर आपका डेसिमल प्लेस हमने डिफाइन नहीं किया गया है तो इट विल बी डिफॉल्ट 0, ठीक है। तो हियर अब यहाँ पे मैंने बताया कि माइनस क्या होगा, डेसिमल प्लेस पोजीशन वैल्यू जो होगी राउंडेड टू द नेक्स्ट इंटीजर, मतलब नेक्स्ट इंटीजर पे राउंड हो जाएगी। इट इज नेक्स्ट राइट साइड ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन 5, अगर वो नंबर नेक्स्ट उस पे राइट साइड नंबर पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव का भी यही फंडा है। निगेटिव का जो ये फंडा है कि हमारा हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा था, 454.352, ये हमारा है पोजीशन 3, 2, 1 और ये पोजीशन क्या है 0, -1, -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या लिखा था, -1 लिखा था। तो -1 ये राइट साइड, -1 जो ये -1 है और ये -4 है, ठीक है। तो -1 के राइट साइड में पोजीशन क्या है 4, यानी कि लेस देन 5 है। तो क्या हो गया 450 मैंने आंसर दे दिया। अगर ये 6 होता तो क्या होता 460 आंसर हो जाता, या 455 होता, 0.352 होता, तो इसका आंसर क्या होता है 45, अगर हम -1 ही होता तीनों में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर यहाँ पे 45 -1 पे क्या हुआ 454 था, तो आंसर क्या हुआ 450, ठीक है। और अगर यहाँ पे 455 होता तो आंसर क्या होता 460 होता। और अगर आंसर 455, तो अगर -2 की बात करते हैं तो -2 के राइट में, अब -2 अगर की बात करें तो -2 के मतलब इसकी बात करें, ठीक है। दिस नंबर आई विल टॉक अबाउट दिस नंबर। तो -2 का क्या है 5, दिस इज अ 5, so that's why it is 500. If I will write here 6, then also 500, 7, then also 500, 9, then also 500, 10, then also 500. In any case, the number will be equal to or greater than 5. Then this whole digit will be increased by 500. Clear? समझ आया नहीं आया? कोई किसी को confusion हो तो बोलो. If any confusion, then ask. Ask बेटा. हेलो, हाँ क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेके भी बैठता हूँ। हाँ बस मैं भी भेज देता हूँ। बोलो बेटा। हेलो, कोई बोलेगा? बोलो। आ गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला फंक्शन हमारा है मॉड, ठीक है, मॉड फंक्शन।
ठीक है। मॉड फंक्शन क्या है? इट रिटर्न्स द रिमाइंडर, ठीक है, ये तो हमने बताया था आपको। इट रिटर्न्स, सिंपल सा है फंक्शन, मोड सॉरी सेलेक्ट मॉड 11,3, ठीक है। तो 11,3 32,3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? द आउटपुट विल बी व्हाट? 2। हियर आउटपुट विल बी आल्सो 2, ठीक है। तो इट विल गिव द सिंपल रिमाइंडर, ठीक है। अब अगर डेसिमल नंबर में है तो वो डेसिमल में ही देगा। सपोज इट इज 10.5,3, ठीक है। तो हमारा क्या है? 10.5,3 एंड आउटपुट विल बी 1.5, ठीक है। तो रिमाइंडर भी उसी अकॉर्डिंग देगा अगर डेसिमल नंबर, एसक्यूएल में ये चीज़ है, ठीक है। अगर रिमाइंडर हम जिस अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे उसी अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो डिविडेंड तो पता ही होता है क्या होता है, डिवाइजर तो पता ही होता है क्या होता है, तो समझाने की जरूरत है? आई थिंक नहीं, ठीक है। डिविडेंड मतलब जिसको हमें डिवाइड करना है, डिवाइजर मतलब जिससे हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हमें लेना है। ये हो गए तुम्हारे कुछ फंक्शंस। अब इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा और स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। अभी इसमें और भी हैं, बताता हूँ सर एक करके। अपर, सबसे पहला फंक्शन होता है अपर। अपर मतलब इफ यू विल मेक अ स्ट्रिंग, कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू लोअर इन लोअर फ्रॉम लोअर टू अपर केस, तो आप इसके लिए अपर यूज करते हो। सेलेक्ट अपर, ब्रैकेट में जो भी आप स्ट्रिंग लिखना चाहो, तेज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? आपका आउटपुट क्या आएगा? TEJ कैपिटल में हो जाएगा ये, इट विल बिकम्स इन कैपिटल, ठीक है। तो इसको तेज में कन्वर्ट हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अपर केस को हम यू केस भी लिख सकते हैं, देन ऑल्सो इट इज सेम, दोनों ही तरीके से लिख के आ सकते हैं। सेम एज लोअर, इफ यू लीव लोअर देन यू कैन राइट लोअर और एल केस, ठीक है। बोथ आर सेम थिंग। ऐसा दोनों में से कुछ भी लिख के आएगा तो आउटपुट विल बी द सेम एज यू विल। समटाइम्स सपोज दैट एक कॉलम में हमें एक स्ट्रिंग दिया गया है, नेम है इसका नेम, और इसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं XYZ, ठीक है। इफ यू वांट टू चेंज ऑल दीज नेम्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है, then what it will happen? The output will be of these all will be same, and you will use the heading name of that. Suppose that if you like name is the select upper, and then you will write name here, okay. Name is the column name, so it will convert, और इसके आगे फिर टेबल नेम लगाएंगे, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम क्या होगा? सेलेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे नहीं, इसका सॉरी हो गया, इसकी जो क्वेरी लिखेंगे। सपोज किसी ने कहा, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि सपोज एक कॉलम है, उसका एक टेबल X है, उसका कॉलम Y है, ठीक है। दिस इज अ टेबल एंड दिस इज अ कॉलम। तो इस टेबल का ये कॉलम हमें सारे लेटर्स कैपिटल डिस्प्ले करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट, अगर सिर्फ ये कॉलम डिस्प्ले करने को कहा जाता है तो उस अकॉर्डिंग, अगर पूरी टेबल डिस्प्ले करना है तो स्टार यूज कर सकते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। तो select C from T, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लगाएंगे, सॉरी फिर गड़बड़ हो गया, सेलेक्ट C, ठीक है, अपर C इस तरीके से, ठीक है। फ्रॉम T, ये C नहीं रहेगा, इस तरीके से लिखेंगे सेलेक्ट अपर C फ्रॉम टेबल, ठीक है, T, ठीक। ये कॉलम था Y और ये कॉलम था X, नेम कॉलम टेबल का था X। फिर से समझ लो, कट्टा मोट हो गया, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा ऐसे। फिर से देखो एक बार, ये हमारा एक कॉलम है X, जिस टेबल का क्या नाम है? T, ठीक है। T इज अ टेबल एंड X इज अ कॉलम। तो हम क्या करेंगे? दोनों को X कॉलम को हमें T टेबल के कॉलम को, कॉलम जो X है उसको हमें कैपिटलाइज करना है, सारे वर्ड लोअर या अपर करना है। उसके लिए हम लोग को लिखेंगे सेलेक्ट
अपर एक्स, ठीक है, फ्रॉम टी। बस ये आपका क्वेरी हो गई कि सेलेक्ट अपर एक्स फ्रॉम टेबल। अगर अब आपको पूरी टेबल डिस्प्ले करनी है तो पूरी टेबल भी डिस्प्ले कर सकते हो, सारे कॉलम्स लिख दो फ्रॉम टी, ठीक है। लेकिन पेपर में आउटपुट पूछा जाता है, ठीक है। एल केस ज़्यादातर कंफ्यूज करने के लिए एल केस पूछ लेते हैं, यू केस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को, यू केस एंड अपर इज द सेम थिंग, एल लोअर केस एंड एल केस इज द सेम थिंग, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यू विल सिंटेक्स अगर इसका याद रखना चाहते हो तो जो भी आप फंक्शन यूज करोगे, एल केस और लोअर केस ब्रैकेट में स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग आप यूज करना चाहो इसमें सिंगल कोट में, ठीक है। नाउ अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो हम बताने जा रहे हैं। एसक्यूएल फंक्शन में टेक्स्ट फंक्शन जो होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन जो होते हैं परफॉर्म ऑपरेशन ओवर स्ट्रिंग वैल्यूज, स्ट्रिंग वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब स्ट्रिंग यूज करते हैं, ठीक है। सब स्ट्रिंग यूज करते हैं। सब स्ट्रिंग क्या काम करता है, ठीक है, ये हमारे दो स्ट्रिंग को ऐड करने का भी काम करता है, दो स्ट्रिंग को सेग्रीगेट करने का भी काम करता है, ठीक है। अब कैसे करता है वो हम बताते हैं। अब इसका अगर हम फंक्शन की बात करें, सपोज दैट अगर हम सिंटेक्स की बात करें, सबसे पहले सिंटेक्स की बात करें तो हम लोग लिखते हैं सब स्ट्रिंग विद इन अ ब्रैकेट स्ट्रिंग। सपोज दैट अगर नाम है स्ट्रिंग का तो अकॉर्डिंगली, नहीं नाम है तो हम स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम मतलब कहाँ से, ठीक है। 5, सपोज दैट 5 इज अ लोकेशन, ठीक है। पॉज कहाँ पे करना है इसको कह सकते हो, ठीक है, किसी भी लोकेशन पे पॉज, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हम इसका कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमने लिखा सेलेक्ट सब स्ट्रिंग में लिखा प्रैक्टिकली, ठीक है, कॉमा 5। अब क्या करेगा ये, हमें कहाँ से देगा। अब इसकी लोकेशन इंडेक्स वैल्यू की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7, देखो अलग स्पेलिंग कर लें, PRACTICALLY, ठीक है, प्रैक्टिकली है। तो हमने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये इंडेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम रियल लोकेशंस की बात करें तो काउंट में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो उसने कहा कहाँ से हमें स्टार्ट, कहाँ से लेना है, फ्रॉम, कहाँ से लेना है 5। अगर हम 5 से लेते हैं तो हमने लिखा 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो 5 लोकेशन कहाँ पे आएगी, ये, ठीक है। ये लोकेशन आ रही है 5 की, टी पे आ रही है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, टिकली, ठीक है। क्या आउटपुट आएगा, टिकली, ठीक है। तो हमारे पास उसी लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसी तरीके से जो भी लोकेशन देंगे, सपोज हम यहाँ पे 4 देते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, फ्रॉम 4, इट विल कम फ्रॉम 4, ठीक है। यहाँ से CTI के साथ आ जाएगा, ठीक है। नाउ सपोज दैट इफ यू फ्रॉम 4 लिख देते हैं या फ्रॉम वो लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है। तो वही सेम फ्रॉम भी यूज़ कर सकते हो और डायरेक्टली लिखोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी और इनडायरेक्टली लिखोगे तो भी सेम। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 5 तो दोनों का मतलब एक ही होगा, फ्रॉम 4 फ्रॉम 5, ठीक है। आउटपुट विल बी द सेम। नाउ अब सपोज दैट हमें दो वैल्यूज देनी है कि हमें फ्रॉम पॉज और दोनों का यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे, ठीक है। ये समझ आ गया। सपोज दैट हमने लिखा यहाँ पे सब स्ट्रिंग, सेम थिंग, ठीक है। हमने लिखा प्रैक्टिकली या फिर कोड जो भी लिखना चाहो कुछ भी, प्रैक्टिकली
ठीक है, हमने लिखा 5,6, ठीक है। अब 5,6, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो हमने 5,6 लिखा तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, जो तुम्हारी 6 डिजिट 6 कैरेक्टर्स होंगे फ्रॉम 5, ठीक है। इसमें तो होंगे नहीं शायद, देखते हैं, ठीक है। 1 होंगे ना, 1 यहाँ से हमारा 5 फिर क्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 ये हो गए और 3 ये हो गया, यानी कि ITCALL, ठीक है, इटकल, ठीक है, ये आएगा। कोई अगर प्रॉपरली स्पेलिंग लोगे तो जो भी आएगा उस पार्ट का, वो ये स्टार्टिंग पोजीशन है और ये एंडिंग पोजीशन है, काउंट करेगा, ठीक है, वहां तक, मतलब उस प्लेस से स्टार्ट होगा और उतने कैरेक्टर्स तक जाएगा, उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे उसने कहा कि 5 से स्टार्ट करो और 6 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लो, यानी कि 5 से स्टार्ट किया, 1 और क्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वो कैरेक्टर्स उसने ले लिए, ठीक है, समझ। अब हम लोग थोड़ा सा निगेटिव की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पूछा तो बन जाएगा ही, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम निगेटिव इंटीजर्स की बात करें, तो अगर हम इंडेक्स नंबर्स की बात करें, तो हमारे पास अगर हम किसी भी, सपोज हमने कहा MMAL, तो एक स्पेलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आ रहा, ये हमारा -1 होगा, -2 -3 -4 -5। अगर हम स्ट्रिंग के रिवर्स ऑर्डर में बात करेंगे तो ये निगेटिव इंटीजर्स में जाएगा, निगेटिव ऑर्डर में जाएगा, ठीक है। अंदाज सपोजर हमने लिया कि इसी का ले लेते हैं, अगर हम इसको हम कॉमा कर देते हैं -3, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो MAL आएगा, लास्ट का, -3 से लास्ट का, ठीक है। तो जो लोकेशन होगी वो उसी अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। ठीक है, समझा? समझ में आया चीज? हाँ कि नहीं आया? क्लास है ना उसमें, ठीक है, समझा? अब सपोज दैट हमारे पास इसी चीज से, जैसे यहाँ पे हमने लिखा -5,3 और -5 यहाँ पे है, ठीक है, -5 यहाँ पे है। तो हमारे पास क्या होगा, जो -5 अगर यहाँ पे है तो हमारे पास उसी अकॉर्डिंग जो वैल्यू लोकेशन होगी, -5 यहाँ है, इसके बाद की 3 वैल्यूज देगा, ठीक है। मतलब -5 में वैल्यू जाएगी तो उसी अकॉर्डिंग रिवर्स में 3 वैल्यूज हमारी आ जाएंगी, ठीक है। समझ में नहीं आया? ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो कि ये हमारा जो पॉज लोकेशन भी होता है, और फर्स्ट वैल्यू इज द पॉज लोकेशन, स्टार्टिंग लोकेशन, एंड सेकंड वैल्यू इज द पॉज लोकेशन, ठीक। अब सपोज दैट अब हमें क्या करना है कि इसके लिए फ्रॉम और फॉर भी यूज करते हैं, ठीक है। फ्रॉम और फॉर कैसे यूज करते हैं वो भी समझो। जैसे हमने इसमें लिखा सेलेक्ट, सबस्ट्रिंग से ही स्टार्ट करते हैं, सबस्ट्रिंग। सपोज हमने लिखा, चलो इसके लिए अकेला, ठीक है, अकेला। तो इसमें हमने क्या किया कि अब यहाँ पे मैंने यूज किया फ्रॉम -4 फॉर 2, ठीक, -4 फॉर 2। तो -4 इसकी लोकेशन क्या होगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। माइनस ये क्या होगा,
-1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो 6 लोकेशन तक जा रही हैं, तो हमारे पास क्या होगा -4। -4 का मतलब है हमारे पास माइनस कौन सी है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा 4 के, ठीक है। वो कह रहा है उसके बाद 2, ठीक है। के बाद 2 वैल्यूज, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी, एक तो 1 ये हो गई और दूसरी 2 ये हो गई, यानी कि की, ठीक है। ये वर्ड आउटपुट आ गया। इसमें का एक नंबर से या 2 नंबर का क्वेश्चंस इनमें से सब स्ट्रिंग में से जरूर आता है। सब स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको बहुत समझना है, अच्छा उसी अकॉर्डिंग समझना, ठीक है। तो एटलीस्ट इट विल आस्क 1 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद इसी में फंक्शन होता है सब स्ट्रिंग में ही मिड, ठीक है। मिड MID, मिड इज द फंक्शन, ठीक है। तो मिड क्या काम करता है, इसका मिड कैसे यूज करते हैं, मिड में हम लोग कह सकते हैं इसका str, उसमें पॉज और लेंथ, ठीक है, पोजीशन और लेंथ, ठीक है। सेम वर्क इसका भी वैसे ही होता है, ठीक है। और मिड का मतलब, मिड का भी मतलब यही होता है जो सब स्ट्रिंग का होता है, ठीक है। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिड एंड सब स्ट्रिंग, यू कैन से दैट कि मिड इज द सिनोनिम ऑफ सब स्ट्रिंग, ठीक है। मिड जो है वो सिनोनिम है किसका, सब स्ट्रिंग का, ठीक है। सुनना, क्लियर। ठीक है, अगली चीज समझो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लेंथ की, ठीक है। हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए लेंथ यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। लेंथ LENGTH, लेंथ, ठीक है। लेंथ और यहाँ पे होता है स्ट्रिंग, ठीक है। जो भी टेक्स्ट भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, जो भी हमने लिखा, सपोज दैट सेलेक्ट लेंथ, हमने लिखा कोई भी सपोज टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। तो लेंथ इसकी कितनी होगी 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 इज द लेंथ, ठीक है। तो लेंथ जो होगी वो 4 हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ इज 4। सेम एज एक और चीज इसी के साथ यूज होती है, 1 इज लेफ्ट, सेलेक्ट लेफ्ट, सॉरी, सेलेक्ट लेफ्ट, ठीक है। अब हमने लिखा यहाँ पे सपोज दैट लेफ्ट कॉमा 4, तो लेफ्ट कॉमा 4 मतलब तो छोटा स्पेलिंग हो गया, तो टूल बॉक्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है इसके कॉमा, इसके बाद कॉमा 4, तो ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट 4 कॉमा टूल, क्या, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, टूल, सब हमने लिखा सेलेक्ट राइट, तो हमने लिखा STR, ये राइट से टूल बॉक्स कॉमा 4, ठीक है। तो इट विल टेक फ्रॉम राइट साइड, मतलब आपको अगर लेफ्ट साइड से चीज देनी है तो यू विल यूज सेलेक्ट लेफ्ट, देन कॉमा हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट फ्रॉम लेफ्ट साइड, सेलेक्ट राइट हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे LBAR आ जाएगा, ठीक है, LBAR, ठीक है। तो मैं
तो अगर कुछ भी नहीं होता है, अगर सपोज कुछ भी नहीं आता है, सपोज दैट इफ यू वांट कि आपका आउटपुट ऐसे दिया हुआ है और कोई कैरेक्टर नहीं आ रहा है, तो आपको आंसर में नल लिखिएगा, ठीक है। यू विल राइट नल इन कैपिटल्स, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है वैल्यू, तो हमारा उसका आउटपुट जाएगा दैट विल बी नल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, उसके बाद बात करते हैं INSTR, ठीक है। इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ठीक है। जो हमारा अब क्या इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग कह सकते हैं उसको, इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। क्या करता है ये, रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस, ठीक है, जो फर्स्ट अकरेंस होगी, ठीक है, ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, जो फर्स्ट अकरेंस होगी वो उसको यहाँ पे रिटर्न करेगा वैल्यू। सपोज दैट हमने कहा कि सेलेक्ट INSTR, ठीक है, हमने लिखा टूल बार, ठीक है, सपोज दैट बार दो बार लिख दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे लिखा बार, हमें बार सर्च करना है, ठीक है, सेव करें, ठीक है। अब आउटपुट क्या आएगा इसका, बार हमें सर्च करना है, तो क्या होगा 0 1 2 3 4, फोर्थ लोकेशन पे आ रहा है ये, ठीक है। इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स नंबर बताता है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ये मत कंफ्यूज होगा, जैसे सब स्ट्रिंग में हमारा काउंट पे काम करता था, और जब इंडेक्सिंग की बात आती है तो हमारा इंडेक्स नंबर, इन मतलब इंडेक्स, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फोर्थ पे क्या आएगा बार, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 4, ठीक है। सेम एज अगर हमें अगर कोई कुछ नहीं मिलता है, अगर सपोज दैट हमने यहाँ पे लिख दिया x इज नॉट प्रेजेंट इन दैट स्ट्रिंग, इन दैट केस द आउटपुट विल बी 0, ठीक है। इन दैट केस आउटपुट विल बी 0, क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रिमिंग की, ठीक है, ट्रिम, ठीक है। ट्रिम क्या काम करता है, L ट्रिम R ट्रिम, दो काम होते हैं। ट्रिम का काम होता है फॉर टू रिमूव द स्पेसेस, रिटर्न द स्ट्रिंग, ठीक है, स्पेस कैरेक्टर रिमूव कर देता है जो लास्ट के, ठीक है। अगर हम केवल ट्रिम यूज करते हैं तो इट विल रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम लास्ट पोजीशन, ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, बट हियर आई एम यूजिंग L ट्रिम R ट्रिम, ठीक है। L ट्रिम R ट्रिम क्या करता है, ठीक है, L ट्रिम मतलब लेफ्ट ट्रिम, इट विल, अभी हम ये ट्रिम भी बताएंगे कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। अगर हमने लिखा सेलेक्ट R ट्रिम, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है R ट्रिम में हमने लिखा टूल बार और फिर एक स्पेस दे दी है बाय मिस्टेक और ये हो गया, तो इसका जो आउटपुट सिर्फ स्पेस ये हट जाएगी और R ट्रिम हो गया। यही काम L ट्रिम का है, अगर लेफ्ट में स्पेस पड़ी हुई है तो इट विल रिमूव दिस एंड देन गिव द आउटपुट, ठीक है। अब कुछ फंक्शंस होते हैं ट्रिम के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ट्रिम के जो फंक्शंस होते हैं इसमें हम लोग यूज करते हैं बोथ, है ना, और ट्रेलिंग, ठीक है, बोथ एंड ट्रेलिंग, ठीक है। बोथ एंड ट्रेलिंग में डिफरेंस क्या है, बोथ का मतलब है इट विल रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, सुना, या फिर एक कैरेक्टर भी रिमूव कर देता है, लाइक लेट्स टेक एग्जांपल, सेलेक्ट ट्रिम, अब ने लिखा कि सपोज दैट हमें कुछ यूज करना है, इसको हमें, इसके साथ हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं लीडिंग, ठीक है, लीडिंग एक कीवर्ड है लीडिंग, और हमने लिखा x, ठीक, x सपोज दैट करना है, और फ्रॉम एक और ट्रिम, बोथ और ट्रेलिंग और लीडिंग भी होता है, सॉरी, 3 फंक्शंस याद रखना, लीडिंग, बोथ और ट्रेलिंग बताना भूल जाना, लीडिंग x और फ्रॉम
सपोज हमने लिखा एक्स 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 टूल एक्स एक्स एक्स, ठीक। और ये हमारा, इसको हमें क्या करना है, तो आउटपुट क्या आएगा, जितने भी लीडिंग एक्स होंगे, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग, लीड कर रहा हो जो स्टार्टिंग के एक्स, लीड मतलब स्टार्टिंग, लीड करना मतलब स्टार्टिंग ही होती है कि हम जो हुआ है गोइंग टू लीड, तो वही चीज़ यहाँ पे भी ध्यान रखना उस चीज़ से। जितने भी एक्स फ्रॉम लीडिंग हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे, बिकॉज आउटपुट आ जाएगा वो टूल एक्स 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 आ जाएगा, ठीक। अब अगर हमने कहा बोथ, अगर हमने इसकी जगह बोथ यूज कर दिया, ठीक है, तो दोनों साइड के जो कैरेक्टर्स होंगे, जितने भी एक्स, बोथ साइड के कैरेक्टर रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब जिस तीसरा हमने यूज किया, तीसरा ट्रेलिंग। ट्रेलिंग मतलब एक कैरेक्टर सपोज हमें मिला, सपोज हमने कहा कि एल से, एल तुमको जहां से भी मिले, ठीक है, हमें लिखा एल वाई जेड एक्स वाई, कुछ भी लिखा, लेकिन जो अगर पहला कैरेक्टर मिलेगा, जो उसका हर कैरेक्टर का जो पहला कैरेक्टर होगा, मतलब यहाँ पे सपोज हमने एल एक्स एक्स लीड किया है, ट्रेल किया है, एल एक्स एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, बट इट हेयर स्टार्टिंग कैरेक्टर इज एल, तो व्हाट इट विल डू, जो एल यहां से भी मिलेगा उसके बाद के सारे कैरेक्टर्स को रिमूव कर देगा, एल से उसके बाद के सारे कैरेक्टर्स को रिमूव कर देगा। मतलब अगर हम इसको बात करेंगे तो इसमें केवल आंसर आएगा 2, ठीक है, और ट्रिपल एक्स स्टार्टिंग का रह जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें एल से स्टार्टिंग है, ठीक है, समझा? हाँ, अगला देखो, एक और चीज बची है, दो चीजें और बची हैं। नाउ व्हाट इट विल रिटर्न, इट रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम, ठीक है। नाउ विल रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेट वैल्यू क्या होगी, वाई 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 एम एम एंड डी डी, ठीक है, इस फॉर्मेट में वैल्यू होगी। तो अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट नाउ, ठीक है, तो सेलेक्ट नाउ वैल्यू क्या होगी, हम लिखेंगे सेलेक्ट नाउ, तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा करंट डेट जो भी होगी, सपोज 2020, फिर डैश, आज डेट क्या है, 6 मंथ है 01 डैश और 16, ठीक। और इसके बाद फिर टाइम लिखा होगा, सपोज 16 29 इस फॉर्मेट में, आर मिनट एंड सेकेंड इस फॉर्मेट में टाइम लेके आएगा, ठीक है। अब इसके आगे एक और चीज बताता हूँ आपको, इसमें अगर हमने लिख दिया है आगे, नाउ में हमने लिखा है +0, ठीक है, नाउ के आगे हमने लिखा +0, ठीक है, तो जो आउटपुट आएगा +0 मीन्स प्लस सेकेंड या फिर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, तो जो डैशेस लगे होंगे, ठीक है, जितने भी डैशेस होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे और वो आउटपुट एज इट इज दे देगा पूरा, विदाउट एनी स्पेसेस, ठीक है। और पूरा जैसे ये लिखा हुआ है तो इसमें सारे जितने भी डैशेस लगे हुए हैं, स्पेशल कैरेक्टर लगे हैं, सब हटा देगा और डायरेक्टली वैल्यू दे देगा, ठीक है, समझा? अब हमें लिखा एक दूसरा फंक्शन है डेट, नाउ इज फॉर रिटर्निंग डेट एंड टाइम बोथ, ठीक है। हियर नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेट, डेट इज द डेट विल डिफाइन अ सेम, सपोज अगर हमने डेट क्या लिखा कि डेट डिफाइन करा या किसी कॉलम में डेट है या किसी कॉलम में वैल्यू है, तो ये पूरी वैल्यू सपोज पड़ी हुई है, ठीक है, डेट भी पड़ी हुई है, टाइम भी पड़ी हुई है, तो फ्रॉम दैट फॉर्मेट ओनली डेट इट विल टेक आउट, ठीक है, जो भी डेट होगी वो बाहर निकाल देगा, बाकी छोड़ देगा। तो आउटपुट ऑफ सपोज यही पड़े, यहाँ नाउ की जगह डेट लिखा हुआ है और डेट के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है 2020 1 16 फिर टाइमिंग, तो क्या होगा, आउटपुट विल बी 2020 01 एंड एस 31, सॉरी ये भी डेट होगा 16, ये भी डेट होगी, ठीक है। now नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं, ठीक है, मंथ और मंथ नेम दो चीजें होती हैं, मंथ एंड मंथ नेम, ठीक है। बोथ फंक्शंस विल टेल द मंथ, सपोज हमने इसमें मंथ लिखा, मंथ
और लिखा, एक डेट डाल दी 2008/02/03 सपोज दैट, ठीक है। ये अपने सिंगल कोट में रहेगा ये डेट, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा इट विल बी 2, ठीक है। और मंथ नेम की बात करेंगे, जिसका आउटपुट आएगा, अगर यहाँ पे मंथ नेम लिख देते हैं, इसकी जगह मंथ की जगह एट द प्लेस ऑफ मंथ यू विल राइट मंथ नेम, देन व्हाट आउटपुट विल बी फेब्रुअरी, मंथ का नाम आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ईयर, डे एंड डे नेम, ये 3 फंक्शन होते हैं, ठीक है। डे नेम, ठीक है। ईयर, डे एंड डे नेम, ठीक है। तो ईयर, डे एंड डे नेम, तो 3 चीजें यहाँ पे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ईयर का मतलब होगा इट विल टेल द ईयर, आपने डे मंथ की जगह डे ईयर यूज करेंगे तो आपका ईयर, यानी कि इसमें सपोज 2008 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट विल बी 2008। अगर हम डे की बात करेंगे तो सपोज जो भी मंथ होगा, ठीक है, उसमें जो डे की बात करेंगे तो उसमें ऐसे लिखेंगे डे ऑफ मंथ, ठीक है। क्लियर? तो डे ऑफ मंथ की बात करेंगे तो डे ऑफ मंथ क्या होगा, उस मंथ का कौन सा मंथ डे है, यहाँ पे जैसे 3rd डे है, इट विल गिव द 3rd, ठीक है। अब डे नेम की बात करेंगे तो इट विल टेल द वीक नेम, वीक डे, मतलब सैटरडे, संडे, ठीक, जो भी होगा सैटरडे वीक कर देगा, ठीक है। अगर हम ईयर की बात करेंगे, सिर्फ डे यूज करेंगे, देन इट विल टेल द डे ऑफ द ईयर, ठीक है, पूरे साल का ईयर बताएगा, ठीक है। इट विल टेल द डे ऑफ द ईयर। समझ आया? ये क्लियर है? ठीक है, डे ऑफ द ईयर, ठीक है। अगर आपने ईयर केवल दिया है, जैसे ऐसे लिखा होगा डे 2000, डेट पड़ी होगी पूरी, तो वो जो डेट होगा वो डेट के अकॉर्डिंग उस ईयर का दिन बताएगा। सपोज 365 डेज हैं, 255th डे है, 277 डे है, इस अकॉर्डिंग, ठीक है। समझा? ठीक। अब बात कर कुछ एग्रीगेट फंक्शंस और हैं, जैसे सम, मिन, काउंट, मैक्स, एवीजी, एवरेज, ठीक है। मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ फंक्शंस होते हैं, ये सम क्या करेगा, टोटल वैल्यूज को सम करेगा, टोटल, इट विल गिव द आउटपुट एज अ टोटल, ठीक है, सम 2 + 2 करके, ठीक है। मिन, उस मिन और सपोज दैट एक कॉलम है, उसमें तुम्हें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, तो द मिनिमम वैल्यू विल बी टेल। काउंट मतलब टोटल काउंट, कितने लोग हैं, जितने काउंट होंगे काउंट करेगा, हाउ मेनी वैल्यूज आर। अब इसमें नल वैल्यू, अगर किसी में नल लिखा हो तो काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, दैट विल नॉट कम इन द काउंट, ठीक है। कॉलम में कभी कभी नल लिखा होता है तो दैट विल कम्स इन अंडर नल वैल्यू, ठीक है। फिर एवीजी मतलब एवरेज, इट विल टेल यू द एवरेज, ठीक है। तो हमने बताया कि एवरेज अगर हमारे पास 1 2 3 4 एक में नल लिखा हो तो 3 वैल्यू ही लोगे, 4 वैल्यूज नहीं लोगे, ठीक है, दैट विल कम्स अंडर एवरेज, ठीक है। समझ आ गया? ठीक है। तो ये आपके टोटल फंक्शंस हो गए, जो फंक्शन का टॉपिक है। यहाँ तक इतना है आपके सिलेबस में जो आपको कंप्लीट करना है, इतने फंक्शंस आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ये आपको मार्क में रख लेना है, इनको फीड करने हैं, इनको प्रैक्टिकल करके देखो। मैंने प्रैक्टिकल ऑलरेडी डाला हुआ है, मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो दिया है आपको, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा नॉट टुडे, ऑन मंडे, ठीक है। अगर आज हो जाता है तो आज भी कर दूंगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट?